channel Institute of Commerce Studies. So today we are going to do another part of our previous video, which was delegation and decentralization. This is part 2 of this topic, delegation and decentralization. पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक इसका, जो है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. तो मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ये समझाया था कि डेलीगेशन होता क्या है. जब अपना वर्कलोड कम करने के लिए मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट्स में बांट देता है ताकि वो इम्पोर्टेंट वर्क अपने पास रख सके और जो लेस इम्पोर्टेंट वर्क है वो सबऑर्डिनेट्स कर दे. The purpose is to reduce his burden, to reduce his load. When a manager passes over his work to his subordinates in order to reduce his workload, that is known as delegation. I hope it's clear. अगर अभी भी आपको delegation और decentralization में difference नहीं पता, so please check the part 1 of this video. Now this is part 2 in which we are going to read the elements of delegation. So basically there are 3 elements of delegation. How many elements are there? There are 3 elements of delegation and it is a very important topic. चाहे MCQ में ही आए but कुछ ना कुछ related work आ ही जाता है इससे. Now the 3 elements of delegation are, number 1 is responsibility. Now these are very general words but these matter a lot in business. Number 2 is authority and number 3 is accountability. Now I hope all of you must be having some book. Any book you must be using, R.K. Singla, Vasan, Poonam Gandhi, whatsoever you're using. But अगर आपको books की language समझ आ रही होती तो why would you be watching this video? So I'm going to explain in very simple words कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है? And then you can read from the book and it will seem more easier to you once you know the meaning of it. Okay, so there are 3 elements of delegation, children. I am telling you again, if you need notes on any topic, so please watch the video. मैं आपको वीडियो में जो लिखवाती हूँ यही आपके notes है. You can note it down along with me, pause the video and note it down. These are the notes itself. You don't need notes from somewhere else except these notes. So the 3 elements of delegation are responsibility, authority and accountability. What is the meaning of these 3 words? See, before knowing the meaning of elements, you must have a clear picture of the meaning of delegation. What did I tell you? What is the meaning of delegation? Delegation is the passing over your work to reduce your workload. घर में मम्मा काम करती है, जब उनका वर्कलोड ज्यादा है, दिवाली आने वाली है या कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो मम्मी का काम ज्यादा हो जाता है घर में. तो मम्मी क्या करती है? मम्मी इंपॉर्टेंट काम अपने पास रखती है और छोटे मोटे काम जो नहीं लगता है बच्चे कर सकते हैं वो आप सब में बांट देती है. ये होता है डेलीगेशन. तो जब मम्मा काम बांटती है वो 3 चीजों का ध्यान रखती है. वो 3 चीजें क्या है? जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी यानी कि हक और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदारी. ठीक है, इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क. What did I say? Obligation of the subordinate to complete the assigned work. I'm writing here. Obligation of the subordinate to complete the assigned work. In a very simple language, I'm going to explain it to you. आपकी मम्मा ने आपको एक जिम्मेदारी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, काम दिया है कि आपको मार्केट से सजाने की चीजें लेकर आनी है, घर डेकोरेशन के आइटम्स लेकर आने हैं. मम्मा ने ये काम किसको दिया है? आपको दिया है. तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आप मार्केट जाएंगे और वो सामान लेकर आएंगे, ये आपकी ड्यूटी है. इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते. क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी?
अपना काम करना, जो काम आपको दिया गया है उसे ईमानदारी के साथ करना ही आपकी जिम्मेदारी है ना। तो वही लिखा है, ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइन्ड वर्क। काम करना है, जो आपको काम दिया है उस काम को पूरा करना, उसी को जिम्मेदारी बोलते हैं। आपकी मम्मी ने बोला घर के लिए डेकोरेशन का सामान लेकर आना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। ऑलराइट, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर, गुड। नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट, अथॉरिटी। अब आप मार्केट गए, आपको तीन चार आइटम्स दिखाए शॉपकीपर ने। नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा लूं कौन सा ना लूं, मम्मा को कौन सा पसंद आएगा कौन सा नहीं आएगा। आप बार बार अपनी मम्मी को फोन कर रहे हो, मम्मी रेड लूं, मम्मा येलो लूं, मम्मा पिंक लूं, मम्मा ब्लू लूं। तो क्या आपको काम देने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आपको काम क्यों दिया था? ताकि वो अपना काम कम कर सके। अगर आप बार बार उन्हें फोन करते रहोगे तो उनका टाइम तो और वेस्ट हो रहा है। यानी जब मम्मा ने आपको काम दिया तो मम्मा ने आपको थोड़ी अथॉरिटी भी दी कि बेटा आप अपनी पसंद की चीजें ले आना, आप खुद डिसीजन लेना, जो आपको अच्छा लगता है वो ले आना, जो आपको अच्छा ना लगे वो मत लाना। आप वहां पे डिसीजन खुद लेना, मुझे बार बार कॉल मत करना। हाँ, अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तब आप मुझे कॉल करना। इसका मतलब जब किसी इंसान को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसके साथ उसे डिसीजन लेने की पावर देना भी जरूरी है। Whenever you are giving responsibility to someone, it is important to assign certain authority also. उसी अथॉरिटी को हम बोलते हैं power to take decisions. All right? So your second element is authority, which is power to take decisions. और इस बारे में हम क्या लिखेंगे? Whenever any person is given responsibility, they are also assigned a certain amount of authority. छोटे मोटे डिसीजंस लेने की अथॉरिटी भी साथ में देना जरूरी है। अगर मेजर कोई डिसीजन है, then you contact the superior, otherwise take the decisions yourself. Okay, now very important is accountability. अब आपने क्या करा? आपने एक चालाकी करी। आपकी मम्मा ने आपको कहा कि बेटा मार्केट से सजाने का सामान ले आओ। आप घर से निकल गए और अपने फ्रेंड के साथ बैठ गए। आपने सोचा 2 घंटे मिले आज तो मार्केट जाने के लिए। आप जाके फ्रेंड के साथ बैठ गए खाने पीने के लिए, और आपने अपने किसी दोस्त को भेज दिया कि तू मार्केट से सामान लेके आ जा। यानी आपने अपने हिस्से का काम किसी और को दे दिया। कोई बात नहीं, वो सामान लेके आ गया, आप सामान लेके घर आगे मम्मी को दे दिया। सारा सामान गलत, कोई भी सामान ढंग का नहीं आया। जो मम्मा ने मंगाया था कुछ नहीं आया, सब अलग आया। तो इसमें गलती किसकी होगी? आपकी या उस पर्सन की जो सामान लेकर आया? किसकी होगी? आपकी। यानी आंसरेबल कौन होगा मम्मा को? मम्मा को जवाब कौन देगा? हु विल बी आंसरेबल टू मम्मा? यू विल बी आंसरेबल। तो ये जो आंसरेबिलिटी होती है, that is known as accountability. Means who is answerable to the particular mistake. It means accountability is answerable to the assigned work. जो काम आपको दिया गया है उसके लिए आंसरेबल आप ही होंगे और कोई नहीं होगा। जो आपको काम दिया गया है वो आप किसी और को दे सकते हो, बिल्कुल दीजिए, लेकिन आंसरेबल कौन होगा? आप खुद। उसी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। इज दैट क्लियर? इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। आपने अपनी अथॉरिटी भी किसी और को दे दी कि तू ही सोच लियो। बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। जो जवाब देना है वो आपको ही देना पड़ेगा। इट मीन्स अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. These are the 3 elements of delegation. Responsibility can be delegated, authority can be delegated, but accountability cannot be delegated. क्या मतलब है इन तीनों का? आपको समझ आया होगा अब तक? अब मैं आपको इसे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैनेजर ने अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया है, that I am busy, you do this work. And with this work you also can take some decisions yourself. If there is something major you can come and ask me. तो ये जो काम दिया है सबऑर्डिनेट को
वो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसको साथ में कुछ पावर दी है कि छोटे मोटे डिसीजंस आप खुद ले लेना इस काम से रिलेटेड, वो है अथॉरिटी। लेकिन उसने वो काम आगे किसी और से करा लिया, लेकिन मैनेजर किससे पूछेगा आंसर? उसी पर्सन से जिसको उसने काम दिया था। सपोज मैनेजर ने काम दिया था सबऑर्डिनेट ए को, और ए ने काम करा दिया बी से, लेकिन मैनेजर क्या बोलेगा कि मुझे आंसर कौन देगा मैनेजर को, ए या बी? ए। हु विल बी अकाउंटेबल? A will be accountable. Accountable means answerable. B will not be accountable. It means responsibility can be delegated, authority can be delegated, but accountability cannot be delegated. So these are the three elements of delegation. I hope the concept is clear by the example कि ये elements किसके हैं और इसका क्या role है delegation में. So children, विल कम अगेन विद द थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे अब डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में और डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में कि डेलीगेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी क्यों है, और डिसेंट्रलाइजेशन बेटर है या डेलीगेशन बेटर है, नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे. Till then, please go through these two parts, share the video as much as possible, subscribe the channel, press the bell icon, and do the revisions regularly. And if there is any problem, if there is any particular topic you want me to make a video on, then please write it down in the comment box so that I can make a video on that particular topic. Till then, keep practicing, keep learning, and bye bye. Take care.